So, welcome back. We'll continue from where we had left yesterday. Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Vanda. She worked her arithmetic problems absent mindedly. 8 times 8. Let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy. To say, "Hey Peg, let's stop asking Vanda how many dresses she has." When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. Suddenly, she paused and shuddered. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings. So, no one in room 13 would recognize it. If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Vanda. Oh, well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. What difference did it make? Slowly, Maddie tore into bits the note she had started. She was Peggy's best friend, and Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. As for Vanda, she was just some girl who lived upon Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. She scarcely ever said anything to anybody. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. "You'd look like a Christmas tree in that," the girls had said in pretended admiration. Thinking about Vanda and 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. For girls, this contest consisted of designing dresses, and for boys, of designing motorboats. Better than anyone else in the room. Probably Peggy would win the girls' medal. Peggy drew better than anyone else in the room. At least that's what everybody thought. She could copy a picture in a magazine of some film star's head so that you could almost tell who it was. Oh, Maddie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. Then they'd know. The next day it was drizzling. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Vanda Petronovsky on the corner of Oliver Street, the street that far, far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Heights. Anyway, they weren't taking chances on being late today because today was important. "Do you think Miss Manson will announce the winners today?" said Peggy. "Oh, I hope so. The minute we get in," said Maddie. "Of course, you'll win, Peg." "Hope so," said Peggy eagerly. The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. There were drawings all over the room, on every ledge, on window sill, dazzling colors and brilliant lavish designs
all drawn on great sheets of wrapping paper. There must have been 100 of them all lined up. These must be the drawings for the contest. They were. Everybody stopped and whistled and murmured admiringly. As soon as the class had assembled, Miss Masson announced the winners. Jack Beggles had won for the boys, she said, and his design for an outboard motorboat was on exhibition in room 12, along with the sketches by all the other boys. As for the girls, she said, although just one or two sketches were submitted by most, one girl and room number 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. In the opinion of the judges, as one of the drawings is worthy of winning the prize, I am very happy to say that Vanda Petronsky is the winner of the girls' medals. Unfortunately, Vanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. Let us hope she will be back tomorrow. Now, class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawing. The children burst into applause, and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouth and whistle, though they were not interested in dresses. Look, Peg, whispered Maddie. There's that blue one she told us about. Isn't it beautiful? Yes, said Peggy. And here's that green one. Boy, and I thought I could draw. So, the chapter starts with the next day when both Peggy and Maddie were eagerly waiting for the results of the drawing contest. And though they had been late for school, here Maddie is talking to herself. She was glad that she had not to make fun of Vanda. Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Vanda. उसको ये अच्छा लगा कि कम से कम उसे वैंडा की खिल्ली तो उड़ानी नहीं पड़ रही थी. वो खुद परेशान थी, इस बात को लेकर परेशान थी कि शायद कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, हम कुछ ज़्यादा ही वैंडा को तंग कर रहे हैं. उसकी हिम्मत नहीं होती है पेगी से कहने की कि पेगी बस करो, बहुत हो गया, अब हम उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे. डायरेक्टली तो वो बोल नहीं सकती, तो सोचती है कि चलो मैं एक नोट ही लिख देती हूँ. तो उसने उसका जो अरिथमेटिक क्लास चल रहा था, उसका मैथ्स पीरियड चल रहा था, एब्सेंट माइंडेडली उसने मैथ्स सॉल्व किया और मैथ्स सॉल्व करने के बाद वह पेगी को लेटर लिखने लगी. फिर जब वो पेगी को लेटर लिख ही रही थी, तब अचानक उसके मन में ये बात आया कि अगर पेगी ने मैडी से ही सवाल पूछना चालू कर दिया तो सब लड़कियों के सामने कि मैडी, अच्छा ये तो बता, ये जो ड्रेस तू पहन रखी है वह ड्रेस तूने कहाँ से लाई. और बेचारी मैडी को ये कबूलना पड़ेगा कि उसने ये ड्रेस जो है पेगी से ही लिया है. पेगी की माँ ने मैडी को ये ड्रेस दे दिया और मैडी की मम्मी ने इसके ऊपर कुछ एम्ब्रॉयडरी करके इसे कुछ नया रूप देने का कोशिश की है, जिसकी वजह से रूम नंबर 13 में कोई ये ना पहचान ले कि ये ड्रेस जो है ये पेगी का ड्रेस है और मैडी उसे पहन रही है. मैडी सोचती है काश
ऐसा हो जाए कि खुद पेगी के मन में ये सवाल उठे कि हमने वैंडा की मजाक नहीं करना चाहिए, वैंडा के साथ में इस प्रकार का व्यवहार बंद कर देना चाहिए। फिर मैडी ने अपने बालों से खेलते हुए ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। सोचा कि क्यों मैं ऐसा नोट लिखूं पेगी को। बेहतर तो ये होगा कि मैं नोट ही फाड़ दूं। और वो नोट के टुकड़े टुकड़े कर देती है। सोचती है कि आखिरकार वैंडा पेट्रोन्स की है कौन। वह बस एक ऐसी लड़की है जो अपने आप को अकेला रखती है, बॉगिन्स हाइट में रहती है और वो एक ही प्रकार का ड्रेस पहन कर आती है। और जबकि पेगी उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड है, तो अपने बेस्ट फ्रेंड से पंगा क्यों ले लेना। तो सोचती है पेगी एक ऐसी लड़की है कि वह कभी गलत कर ही नहीं सकती, तो इससे बेहतर ये होगा कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। और वैंडा के बारे में क्या कहना, वो तो कोई एक ऐसी मामूली सी लड़की है जो बॉगिन्स हाइट में रहती है, अकेले स्कूल यार्ड में खड़ी रहती है, किसी से कभी कुछ बात नहीं करती, किसी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। और स्कूल में अगर किसी से बात करती भी है तो बस वही पुरानी बात कि उसके पास में वही 100 ड्रेसेस है। फिर मैडी को ख्याल आता है कि एक बार वैंडा ने उसको एक ड्रेस के बारे में बताया था कि जो ब्लू कलर का ड्रेस है, पेल ब्लू कलर का ड्रेस है। और उसे याद आता है कि एक उसके पास में ब्रिलियंट ग्रीन, जंगल ग्रीन, हरा भरा ग्रीन और उस पर रेड रिबन, एक रेड शैश बंधा हुआ है। तो किसी ने उससे कहा था कि वैंडा, इस हरे ड्रेस में तो आप बिल्कुल एक क्रिसमस ट्री जैसे लगोगी। और बाकी सब गर्ल्स काफ़ी उसको एडमायर करने लगे। वैंडा के बारे में जब ऐसा ख्याल आया, वैंडा के ड्रेसेस के बारे में, तब मैडी के मन में ड्राइंग कॉन्टेस्ट के बारे में भी ख्याल आने लगा कि जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट हुआ था, ये ड्राइंग कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा। ड्राइंग कॉन्टेस्ट 2 कैटेगरीज़ में थे, बॉयज़ का अलग कैटेगरी था और गर्ल्स के लिए अलग कैटेगरी था। बॉयज़ को मोटर बोट्स डिज़ाइन करने थे और गर्ल्स को ड्रेस ड्राइंग करने थे, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेसेस के बारे में ड्राइंग करना। ड्राइंग कॉन्टेस्ट था जिसमें लड़कियां जो है वो ड्रेसेस डिज़ाइन करेगी और बॉयज़ जो है वो मोटर बोट्स डिज़ाइन करेगी। मैडी को लगा कि शायद क्या लगभग तय है कि पेगी ही गर्ल्स के कैटेगरीज़ में ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीतेगी, क्योंकि पेगी क्लास में बाकी सब लड़कियों से ज़्यादा बेहतरीन ड्राइंग करती थी। एटलीस्ट सब लोग ऐसा ही सोचते थे, क्योंकि पेगी किसी एक्टर का चेहरा किसी मैगज़ीन से लगभग हूबहू उतार लेती थी, कॉपी कर लेती थी और बाकी लोग उस ड्राइंग को देखकर पहचानते थे कि ये किसका चेहरा है, ये किसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैडी बहुत ही श्योर थी कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट हो ना हो, पेगी ही जीतने वाली है। कल तो टीचर अनाउंस कर ही देगी कि विनर कौन है, फिर सबको पता लग जाएगा कि कल का विनर कौन है। अगला दिन जब आया तो हल्की सी रिमझिम बारिश हो रही थी। मैडी और पेगी जल्दी अपने स्कूल की तरफ चलने लगे। पेगी के पास में जो अम्ब्रेला था उसमें शरण ले ली मैडी ने, और दोनों, मैडी और पेगी, उस अम्ब्रेला के नीचे सुरक्षित स्कूल पहुंच जाते हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात थी कि उस दिन वो वैंडा का वहाँ पर इंतज़ार नहीं करने वाले हैं। वैंडा पेट्रोनस्की का वही ओलिवर स्ट्रीट, जो स्ट्रीट बॉगिन्स हाइट तक का जाता है, ये रेल रोड के नीचे से गुज़रते हुए पहाड़ों के ऊपर बॉगिन्स हाइट है, वहाँ पर ये रोड पहुँच जाता है। फिर भी चलो, उनका मानना था कि आज चांस क्यों लेना
लेट होने का। आज तो हमें कोई चांस नहीं लेना है देरी होने, क्योंकि आज क्या है, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है। फिर पेगी मैडी से सवाल करती है कि डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? क्या आपको लगता है कि मिस मैसन आज डिक्लेयर करेगी कि विनर कौन है? ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी। ऑफ कोर्स यू विल विन पेग। तो मैडी कहती है मुझे लगता है जैसे ही हम क्लास के अंदर जाएंगे वैसे ही मैम अनाउंस करेगी कि विनर कौन है, और मुझे पूरा यकीन है कि पेग तुम ही जीतने वाली हो। पेगी भी थोड़ा कॉन्फिडेंट थी, कहती है होप सो। वो भी बहुत ईगर थी, उसे भी लगा कि शायद वही जीतेगी। और जैसे ही वो क्लास के अंदर एंटर होते हैं वह वहीं पर रुक जाते हैं और एक बड़ी सी सांस लेते हुए वहीं पर थम जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ड्राइंग थे पूरे रूम में। हर खिड़की के हर कोने पर, खिड़की के कोने पर, लेजेस के ऊपर डैज़लिंग कलर में ब्रिलियंट रंग बिरंगे लैविश डिज़ाइन थे। बहुत बढ़िया, एक से बढ़िया एक डिज़ाइन थे, और बड़े बड़े रैपिंग पेपर के ऊपर डिज़ाइन बनाया गया था। और लगभग कम से कम 100 के आसपास ड्राइंग शीट्स लगे होंगे। और वाकई में ये 100 ड्राइंग शीट्स थे। हर कोई यहाँ पर रुककर उसको निहारता और उसकी तारीफ़ करता, सीटी बजाकर उसकी तारीफ़ करता और एडमायरिंगली कहता कि क्या ड्राइंग है, क्या बढ़िया ड्राइंग बनाया है किसी ने। और जैसे ही क्लास असेंबल होती है, क्लास टीचर जो मिस मैसन है वह अनाउंस करती है विनर्स के बारे में। वो कहती है जैक बेगल्स had won for the boys, she said, and his design for an outboard motor was on exhibition in room number 12 along with the sketches by all the other boys. तो बॉयज़ का विनर कौन निकला? जैक बेगल्स। जैक बेगल्स ने आउटबोर्ड मोटर बनाया। आउटबोर्ड मोटर मतलब जो मोटर बोट का जो मोटर जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, पानी की तरफ होता है, ऊपर में पानी की तरफ होता है, वो डिज़ाइन किया उसने। और बाकी लड़कों का भी जो ड्राइंग है रूम नंबर 12 में, जैसा जैक बेगिंस का ड्राइंग विनिंग एंट्री और बाकी लड़कों की भी ड्राइंग एंट्री रूम नंबर 12 पे डिस्प्ले पर है। अगर बॉयज़ चाहते हैं तो वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। एंड एज फॉर द गर्ल्स शी सेड although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl and room number 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs. तो मिस मैसन कहती है वैसे तो लड़कियों ने 1 या 2 ही ड्राइंग सबमिट किया है, लेकिन रूम नंबर 13 की एक लड़की है जिसने, और जिसके वजह से रूम नंबर 13 को फ़ख्र भी करना है, घमंड करना है कि उसने 100 डिज़ाइन सबमिट किया है। ड्रेसेस के पूरे 100 डिज़ाइन, और हर डिज़ाइन अलग है, हर डिज़ाइन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सुंदर है। हाँ, और जजेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर एक डिज़ाइन, हर एक ड्रेस प्राइज़ के काबिल है। हर एक प्राइज़ जो है 1 से लेकर 100 सारे के सारे अवार्ड जो है उसी पेंटर को, उसी आर्टिस्ट को जाना चाहिए, जो कि कौन है? वांडा पेट्रोंस्की। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल्स। और टीचर कहती है कि मैं बहुत ही गर्व से कहती हूँ, मैं बहुत ही खुशी से कहती हूँ कि वांडा पेट्रोंस्की जो है वो गर्ल्स के मेडल की विनर है, गर्ल्स के मेडल की हकदार है। फिर कहती है कि बदकिस्मती से वांडा जो है वो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही है, और वह हम उसके लिए ताली बजाए तो वह सुन भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी चलो हम उसके लिए एक ज़ोरदार ताली बजाते और उसका उत्साह बढ़ाते हैं। और ये सुनते ही बॉयज़ जो है बस इसी का इंतज़ार कर रहे थे। वो ताली बजाते हैं, सीटी मारते हैं और पैर भी ज़मीन पर पटक पटक कर काफ़ी आवाज़ करते हैं। और फिर जब मैम कहती है कि ठीक है आप अभी जाकर ड्रेसेस को देख सकते हैं, गर्ल्स लोग बॉयज़ लोग
जो डिज़ाइन देखना है, मोटर बोट की डिज़ाइन देखना है, मोटर के बोट की डिज़ाइन देख सकते हैं, और ड्रेसेस की डिज़ाइन देखना है तो ड्रेसेस की डिज़ाइन देख सकते हैं। तो मैडी और पेगी जब ड्रेस को देखते हैं तब उनको लगता है कि हमने ये ड्रेस के बारे में हम कुछ जानते हैं। तो लुक पेग विस्पर्ड मैडी, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल। बोले देखो देखो वहाँ पर देखो, वो ब्लू कलर का ड्रेस है जिसके बारे में वो हमको बता रही थे, क्या वो बहुत सुंदर नहीं है? येस सेड पेगी, एंड देयर इज दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। बोले देखो वो उसका ग्रीन ड्रेस है और क्या कहना उसके ड्राइंग का, क्या कहना, और मैं सोची थी कि मुझे ड्राइंग करना आता है। देखो वैंडा तो मुझसे बेहतरीन ड्राइंग करती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक का समझ में आया। सो लेट्स सी द ओरल कॉम्प्रिहेंशन एंड लेट्स चेक। Why didn't Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? What was she afraid of? क्या लगता है आपको, मैडी ने पेगी से वैंडा को चिढ़ाना बंद करने के लिए क्यों नहीं कहा? किस बात से वो घबराती थी? क्या लगता है आपको? Who did Maddie think would win the drawing contest? Why? मैडी के अनुसार कौन ड्राइंग कंटेस्ट जीतने का हकदार है और क्यों? Who won the drawing contest? What happened? What had the winner drawn? तो why didn't Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? क्योंकि मैडी को लगा अगर वह पेगी से कहेगी कि वैंडा की खिल्ली उड़ाना बंद कर दे तो उसको डर था कि कहीं वह बलि का बकरा ना बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वैंडा के जगह मैडी से ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछे जाए कि मैडी ये तो बता, जो ड्रेस तू पहनी है वह तूने कहाँ से लाई है, कहाँ से ख़रीदे, कितने में ख़रीदे है। और बेचारी मैडी को ये सबके सामने शर्म से ये कबूलना पड़ेगा कि ये उसने ख़रीदा नहीं है, इनफैक्ट ये तो पेगी का उतरन कपड़ा है, पेगी का कपड़ा पुराना कपड़ा है जो उसकी मम्मी ने उसको थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज किया, थोड़ा रिबन ऐड करके, कि ताकि कोई पहचान ना ले रूम नंबर 13 में कि ये पेगी का ड्रेस है। और वैसे भी वैंडा है ही कौन, एक बहुत ही साधारण सी लड़की जो किसी से बात नहीं करती, जिसका कोई दोस्त नहीं है, जो बॉगेंस हाइट पर रहती है। और पेगी स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है, सबसे सुंदर है, सबसे होशियार है, और वो मैडी की बेस्ट फ्रेंड है। तो इस वजह से वह चाहती थी कि वह पेगी से ये बात ना कह दे कि वैंडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे। यहाँ पर जो दूसरा सवाल है, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट और वाई? तो मैडी को लगता है कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट तो पक्का है कि पेगी ही जीतेंगी, क्योंकि पेगी की ड्राइंग काफ़ी अच्छी थी। क्लास में लगभग सभी लड़कियों से काफ़ी अच्छी ड्राइंग पेगी की थी। कई बार उसने देखा कि पेगी ने किसी मैगज़ीन से किसी फिल्म स्टार की तस्वीर उतारी है और वह तस्वीर इतनी सिमिलर है कि लोग उस तस्वीर को देखकर पहचान जाते हैं कि पेगी ने किसकी तस्वीर उतारी है। Who won the drawing contest? Of course, Peggy did not win the drawing contest. The drawing contest was won by Wanda Petronsky. और उसने क्या ड्राइंग किया था? What had the winner drawn? The winner had drawn 100 designs of dresses, and each and every design was different, and each and every design deserved to be among the winning category. तो ये कहानी जो है ना, थर्ड पर्सन में लिखी गई है। थर्ड पर्सन मतलब ये कहानी जो लेखक बता रहा है वह एक बाहरी नज़रिया से बता रहा है, यानी वो इस कहानी में शामिल नहीं है। सो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ये जो होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो होते हैं, ये डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन में होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये सारी की सारी कहानी जो है इनडायरेक्ट नरेशन में है।
एज अ थर्ड पर्सन ये जो पात्र है, ये जो कैरेक्टर्स है, ये कैरेक्टर्स को बाहर से देखकर कहानी लिखी गई है। मानो जो लेखक है वह कोई और है, वो इनमें शामिल नहीं है, वह इनको देख सकता है, इनको परख सकता है और इनके मन में क्या चल रहा है उसके बारे में वो जानकारी रखकर वो सारी की सारी कहानी लिख सकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो लेखक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो कैरेक्टर क्या बोल रहा है या कैरेक्टर क्या सोच रहा है, कैरेक्टर के नज़रिए से भी लेखक कई बार इस कहानी में उसने कुछ ना कुछ जिक्र किया है। तो कभी कभी लगता है कि ये कैरेक्टर के अंदर घुसकर भी लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जब मैडी कहती है कि थैंक गुडनेस शी डिड नॉट लिव अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स एंड हैव अ फनी नेम, तो शुक्र है कि वो बॉगिन हाइट्स पे नहीं रहती है और उसके पास में ऐसा अजीब व गरीब नाम नहीं है। तो ये लगता है कि वो कैरेक्टर के अंदर समा कर वह लिख कर ये डायलॉग उसने लिखा है। तो लेट्स कंटिन्यू नाउ, हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। द 100 ड्रेसेस 2। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clasped her hands. Attention class, everyone back to the seat. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Vanda's father that I want to read to you. Miss Mason stood there a moment and the silence of the room grew tense and expectant. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. Her manner indicated that what was coming. This letter from Vanda's father was a matter of great importance. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. तो जब क्लास जो है ड्राइंग एग्जीबिशन को देख रहे थे, घूम रहे थे एक क्लास से दूसरे क्लास में, तब मिस मैसन को एक चिट्ठी लेकर आया। कोई तो भी एक बच्चा प्रिंसिपल ऑफिस से जो मॉनिटर था उसने एक लेटर लेकर आया और मिस मैसन को लाकर वो लेटर उसने थमा दिया, मिस मैसन को लेटर दे दिया। फिर मिस मैसन ने उसको पढ़ा, एक बार, दो बार, कई बार पढ़ा और पढ़ने के बाद उसने ताली बजाकर बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। उसने कहा अटेंशन क्लास, और सभी बच्चों से कहा कि वह अपने अपने सीट पर जाकर विराजमान हो जाए, वहाँ जाकर वह बैठ जाए। और जब सब लोग वहाँ पर शांति से बैठ गए, अपने सीट पर शांति से बैठ गए, तब मिस मैसन ने कहा कि उसे वैंडा के पिताजी ने एक लेटर लिखा है और वह उस लेटर को क्लास के सामने पढ़कर सुनाना चाहती है। और कुछ देर मिस मैसन वहाँ पर खड़ी हो गई बगैर कुछ कहे। क्लास में थोड़ा सा तनाव बढ़ गया, लोग वेट कर रहे थे कि अब आने वाला क्या है, और टीचर ने जानबूझकर अपने चश्मे को एडजस्ट करते हुए, धीरे से एडजस्ट करते हुए, जिस प्रकार से वो अपना चश्मा, अपना बॉडी लैंग्वेज जता रही थी, तो क्लास को समझ गया कि जो आने वाला है, जो लेटर में कुछ लिखा है, वो ज़रूर और ज़रूर कुछ बहुत ही ख़ास बात है। तो लोग और भी उत्सुक हो गए जानने के लिए कि आखिरकार इस लेटर में लिखा क्या है। हर कोई बड़े ध्यान से मिस मैसन क्या पढ़ रही थी वह सुनने लगे, और मिस मैसन ने वह चिट्ठी पढ़ते हुए बोली, डियर टीचर, माई वैंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जेक ऑल्सो, नाउ वी मूव अवे to the big city. No more holler Polak. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jan Patronsky.
तो लेटर बहुत ही शॉर्ट था, ब्रीफ था, टू द पॉइंट लेटर था। इस लेटर को सुनते ही लगता है कि लिखते वक्त जो वैंडा के जो पिता थे वह बहुत ही इमोशनल होकर ये लेटर लिखे उन्होंने। काफ़ी दर्द दिख रहा है इस पत्र में कि माई वैंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, मेरी वैंडा तुम्हारे स्कूल में नहीं आएंगी आज से, और जेक भी नहीं, उसका भाई जो छोटा भाई है वह भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वह इस शहर से किसी बड़े शहर की तरफ जाने वाले हैं। क्यों? यहाँ पर लोग उनको उनके नाम से हॉलर पोलैक, यानी हाउ आर यू पोलैक, पोलिश वाले के हिसाब से उसको चिढ़ाया करते हैं। हो सकता है जिस प्रकार से वैंडा के साथ में स्कूल में किया जा रहा है, ऐसा हो सकता है कि वैंडा के पिता के साथ में भी ऑफिस में किया जा रहा होगा। इसलिए वो सोचता है कि मैं कोई बड़े शहर में चला जाऊं जहां पर बहुत सारे ऐसे पोलिश लोग रहते हैं, वहां पर ये नाम इतना अजीब नहीं होगा, ये लोग इतने अजीब नहीं होंगे और लोग इन्हें इस नाम से नहीं चिढ़ाया करेंगे। ऐसा कह के वो लिखकर लेटर को समाप्त कर देता है। A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them, and wiped them on her soft white handkerchief. Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. लेटर पढ़ने का प्रभाव क्या हुआ क्लास पर? क्लास एकदम से शांत हो गई। मिस मैसन ने अपना चश्मा निकाला और उसके ऊपर हल्के से फूंकते हुए, उसे पोंछकर, सफ़ेद हैंकरचीफ से पोंछते हुए उसने कहा कि जब उसने कहा तो उसकी आवाज़ बहुत ही धीमी धीमी और दबी दबी थी। उसने कहा, आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स in room 13 purposely and deliberately hurt anyone's feelings because of his or her name happened to be a long unfamiliar one. तो मिस मैसन ने अपने क्लास की तरफ से बोला कि हम जानते हैं कि आपने जानबूझकर किसी की मजाक नहीं उड़ाई होगी, क्योंकि जस्ट बिकॉज उसका जो नाम है वह बहुत ही लंबा और बहुत ही अजीब है। आई प्रेफर टू थिंक दैट वॉज what was said in thoughtlessness. I know that all of you will feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened. Unfortunate and sad, both. And I want you all to think of it. तो मिस मैसन कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपने जानबूझकर उसकी मजाक नहीं उड़ाई, जो भी कुछ हुआ होगा वह बगैर सोचे समझे हो गया अपने से, लेकिन जो हुआ सो हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? अब इसके बारे में हमको बहुत ही गौर से सोचना है और सोच विमर्श करने के बाद ये निर्णय लेना है कि हमें इसके बारे में करना क्या है। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड. Maddie tried to prepare her lessons, but she could not put her mind on her work. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. She had stood by silently, and that was just as bad as what Peggy had done. Worse, she was a coward. At least Peggy hadn't considered they were being mean, but she, Maddie, had thought they were doing wrong. She could put herself in Vanda's shoes. Goodness, wasn't there anything she could do? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. She seemed to be studying hard. Well, whether Peggy felt badly or not, she, Maddie, had to do something. She had to find Wanda Petronski. Maybe
She had not yet moved away. Maybe Peggy would climb the heights with her and they would tell Vanda she had won the contest, that they thought she was smart and the 100 dresses were very beautiful.